Yeah, welcome students to this another session of accounts. Today we will be taking up sum number 10 of your textbook. Saraswati High School, Khed showed the following position on 31st March 2018. This is the financial position as on 31st March 2018, and you are given the receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. So in a way, this is the opening balance sheet. This is the opening balance sheet, and receipt and payment account one by one we shall go through. These are the opening balances of cash and bank, tuition fees 1718. It means it is of previous year. Then tuition fees of 1890 of current year. Fine collected. Fine collected will be the income. It will be shown in the income side of income and expenditure account. Admission fees is an income. Term fee is also an income. Donation for library. You see, this donation is for a specific purpose. So it will not go in the income side. It will go in the liability side. It will be shown in the liability side. It is a capital receipt. Interest on bank deposit, it is a revenue income. Government grants, it is a revenue income. Now, in the payment side, salaries to teacher, it is an expenditure. Salaries to office staff, it is also an expenditure. Books, it is a capital expenditure. Printing and stationery, it is a revenue expenditure. Yeah, 1 minute. Books. You see, opening balance of books is 22,000. So it will be added to the opening balance. Then annual gathering expenses. It is a revenue expenditure. Office rent is a revenue expenditure. They will be shown in the expenditure side of income and expenditure account. Repairs, sports expenses are again revenue expenditure. Furniture is a capital expenditure. If the opening balance of furniture is there, शुरू में इतना फर्नीचर था और बीच में इतना खरीदा, तो उसमें जुड़ जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे. Then cash and bank balances, they will be shown in the balance sheet. They are the closing balances. Now, following additional information. Tuition fees are outstanding for the current year rupees 5,000. Tuition fees is outstanding for the current year. So in this 1 lakh of rupees, I have highlighted it already. In this 1 lakh rupees, this 5,000 will be added, and these 5,000 will be shown in the asset side of the balance sheet. Salary to teacher outstanding. These outstanding salary will be added to the salary, and they will be shown in the liability side. Rent paid in advance will be deducted from this expenditure, and they will be shown in the 3,000 will be shown in the asset side of the balance sheet. Depreciation will be shown in the expenditure side of income and expenditure account, and the amount of depreciation will be deducted from books and furniture in the asset side of the balance sheet. Now let us do the sum. Take all the items one by one in our Excel sheet. Opening balances of cash, we have nothing to do with them. They will neither appear in income and expenditure nor in balance sheet. Closing balance of cash will appear in the balance sheet. Tuition fees, you see, for 2017-18 we have received 8,000, and tuition fees outstanding is 10,000. अरे भाई, पिछले साल में 10,000 रुपया बाकी था. पिछले साल कितना बाकी था? 10,000. 10,000 में से 8,000 रुपया आ गया, तो अब बाकी कितना बचा? 2,000. ये 2,000 जो बाकी बचा है, ये आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है. इसको अपन बैलेंस शीट में बता देंगे, और बैलेंस शीट में बताएंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस.
ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 17-18 2,000 रुपया। अच्छा, अब 18-19 के लिए अपन को इतना पैसा मिला, तो जो इतना पैसा 18-19 में मिला वो 18-19 के इनकम है बाय फीस। 1,00,000 रुपया एड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है, पॉइंट नंबर फॉर द करंट ईयर 5,000 बाकी है, तो 5,000 जो बाकी है वो इसमें जोड़ देंगे, और जो बाकी है वो आपको वसूल करना है, तो वो आपका असेट है। 18-19 में आपको 5,000 रिसीव करना बाकी है, तो ये आप असेट साइड में बता देंगे। फिर फाइन कलेक्टेड इज अ रेवेन्यू इनकम, आप इसको बाय फाइन कलेक्टेड इज अ रेवेन्यू इनकम 2,000 रुपया। एडमिशन फीस 10,000 रुपया। फीस, उसके बाद टर्म फीस 7,000 रुपया। और टर्म फीस 7,000 रुपया। उसके बाद डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रेवेन्यू इनकम नहीं है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी आपके एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इसको अपन केवल लाइब्रेरी के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसको अपन बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में बताएंगे, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 5,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ₹5,000। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, रेवेन्यू है, तो इसको अपन इनकम मानेंगे, उसी साल की इनकम मानेंगे जिस साल में ये मिला है, बाय गवर्नमेंट ग्रांट। कितना, 2,00,000 रुपया। ये साइड हो गई। अब अपन इस साइड चलते हैं, पेमेंट साइड। सैलरी टू टीचर हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है। तो सैलरीज टू टीचर कितना है, 1,80,000, 1,80,000। अब 1,80,000 में आउटस्टैंडिंग 15,000 है, कितना है, एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग 15,000। आउटर कॉलम में 1,95,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये अपनी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्लीज कितना अमाउंट है, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरीज। देन सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 30,000 रुपया, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ टू ऑफिस स्टाफ 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। बुक्स, देखिए बुक्स आपने
परचेज करी है, लेकिन बुक्स का आपके पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस भी है। तो ओपनिंग बैलेंस में ये जो है ऐड करेंगे। बुक्स क्या है, 22,000 रुपया है। बुक्स 22,000 रुपया, एड परचेस्ड। कितना परचेज करा है बुक्स, आपने 15,000 रुपए का बुक्स परचेज किया है, 15,000 का परचेज किया है। तो टोटल आपके पास 37,000 का बुक्स हो गया। अब बुक्स में क्या है, आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है 15% का। तो 15% का डेप्रिसिएशन बुक्स में हाथों हाथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। लेस डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे अपन देखते हैं। यहाँ पे बुक्स देखिए, समझाता हूं मैं। 22,000 रुपया, 22,000 रुपया और 15,000 रुपया। 22,000 को तो आपने क्या करा, पूरे साल के लिए इस्तेमाल करा। तो 22,000 इंटू 15%, तो ये 3300, ये 15% इज इक्वल टू, ये अपन ने देखिए, इसको समझिए, ये अपन ने कब परचेज किया, ये अपन ने एक को परचेज किया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए परचेज किया। तो इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। तो अब अपन को इन दोनों को ऐड कर लेना है, दिस प्लस दिस। कितना हो गया, 3863, 3863, 3863 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। और ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन यहां पे लिख देते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3863। अब नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये रेवेन्यू खर्चा है। रेवेन्यू खर्चे को अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताएंगे। देखिए ये बुक्स क्या है, कैपिटल खर्चा था, तो इसको अपन ने बैलेंस शीट में डाला। और ये क्या है, रेवेन्यू खर्चा है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 रुपये। कितना है, 5,000 रुपया। उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपया, 10,000 रुपया टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपया। उसके बाद ऑफिस रेंट 16,000 टू ऑफिस रेंट 16,000 रुपया। अब ऑफिस रेंट को हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट है। ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस 3,000 रुपया, 3,000 रुपया आप लेस करेंगे, लेस प्रीपेड, प्रीपेड 3,000 रुपया, आपका ये हो गया 13,000 रुपया। उसके बाद रिपेयर खर्चा है 15,000 रुपया टू रिपेयर, टू रिपेयर 15,000 रुपया, 15,000 रुपया रिपेयर। स्पोर्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपया, 5,000 रुपया टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5,000 रुपया। फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर क्या है, कैपिटल खर्चा। अपन देखते हैं शुरू में कुछ था क्या अपने पास, शुरू में अपने पास 40,000 के फर्नीचर थे। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, लिखते हैं फर्नीचर, 40,000 के फर्नीचर हैं अपने पास शुरू में। और
50,000 रुपया अपन ने 1 जुलाई में खरीदा। एडिशन एड परचेज 50,000 रुपया का अपन ने परचेज करा, तो 40,000 और 50,000 रुपया। अब अपन को देखना होगा 10% का डेप्रिसिएशन लगना है। कितने का? 10% का डेप्रिसिएशन लगना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ये आपका, ये तो अपने पास शुरू में था, अपन ने पूरे साल इस्तेमाल किया है तो पूरे साल का लगेगा। 50,000 अपन ने कब परचेज किया? 1 जुलाई को। कब परचेज किया? जुलाई को। तो ये 9 महीने का लगेगा। कब? कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का। इज इक्वल टू दिस इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। तो ये टोटल 7,750, 90,000 और 7,750। अब इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, आपका कितना हो गया? इतना। और ये जो डेप्रिसिएशन है इसको अपन यहाँ पे बताएंगे, इसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बुक्स का बताया था, साथ में ही बताना चाहिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अमाउंट था अपना 7,750, 7,750। देन आपका कैश और बैंक बैलेंस, इनको अपन बैलेंस शीट में असेट में बताएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश कितना है? 8,000 और 12,000, 8,000 और 12,000। Then we look at the adjustment, tuition fees for the current year outstanding, इसको अपन कर चुके हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कर चुके हैं। रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट अपन ने यहाँ पे देखिए, प्रीपेड रेंट अपन ने यहाँ पे तो माइनस कर दिया, इमीडिएट इफेक्ट देना चाहिए। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना है? प्रीपेड रेंट 3,000 रुपया, 3,000 रुपया प्रीपेड रेंट। ओके, सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट अपन दे चुके हैं। कैपिटल फंड यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। अब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। क्या देखते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में अपने पास कैपिटल फंड कितना था? 6,80,000। तो 6,80,000 यहाँ पे लिख देते हैं, 6,80,000। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आपको एंट्रेंस फीस दे रखी है कि एंट्रेंस फीस अपने को क्या था? लायबिलिटी, मतलब पहले से ही मिल गई, अपने को पहले से मिल गई। तो जो पहले से मिल गई वो आपके या एंट्रेंस फीस अपने को दे रखी है लाइबिलिटीज में, तो इसका मतलब अपन ने एंट्रेंस फीस का एक अलग से हेड खोला हुआ है और इसको अपन लाइबिलिटी में बताते हैं। तो अपन ओपनिंग बैलेंस को ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, एंट्रेंस फीस, फीस 20,000 एंट्रेंस फीस। और फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे,
रिसीट एंड पेमेंट में इस बार ओपनिंग बता दिए, बाकी इनका कुछ नहीं करना है। लेबोरेटरी, इसको अपन, ये अपने असेट हैं, इनको अपन असेट में लिखेंगे। कितना है लेबोरेटरी का? 15,000 रुपये। कितना है? 15,000 रुपया। ये अपन ने असेट में लिख दिया। बिल्डिंग 6 लाख रुपया, बिल्डिंग 6 लाख रुपया अपन ने असेट में लिख दिया। बिल्डिंग। फर्नीचर और बुक्स का अपन एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ट्यूशन फीस का अपन ने कर लिया था कि 8,000 पिछले बार बाकी थी। 8,000 में से 10,000 में से 8,000 आ गई थी, तो 2,000 बाकी है। 2,000 को मैंने आपका असेट में बता दिया था। तो ये सारे एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में जो सारी आइटम्स थी वो मैं कर चुका हूं। सो इन दिस वे आई हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। अब अपन टोटल करते हैं। $3,29,000 आपकी इनकम साइड की टोटल आई। सब आउटर कॉलम में लिख दिए हैं। अब अपन इनकी टोटल करते हैं। ये टोटल आई आपकी 2,84,613। 2,84,613। This is this minus this. So it will become 44,387. To surplus transferred to capital fund. To surplus transferred to capital fund. ठीक है। और फिर इधर की भी टोटल देख लेते हैं। इधर की भी टोटल अपनी 3,29,000 आ रही है। 3,29,000। Okay, student, and this we will add surplus कहाँ जाता है? कैपिटल फंड में। Surplus, this is 44,387. So outer column में this plus this. Now the total is 7,60,387. So आप टोटल में लिख देंगे। इतना था, वापस एक बार 7,60,387. 7,60,387. Let us अब इधर भी ऐड करते हैं अपन। 7,60,387. 7,60,387. This will become total, and this is also total. बॉर्डर सब जगह लगा देते हैं। So in this way we have completed the sum very conveniently, very easily. Any difficulty, write to me on my WhatsApp number and mail ID. बच्चों पढ़ाई करिए, देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए।
So thanks for watching.